زندگی میں پہلی مرتبہ یہ روکھڑی کی سرزمین پر مجھے حاضری کا شرف اور اعزاز میسر آ رہا ہے۔ میرے لیے یہ پرسعید لمحہ ہے کہ جب مجاہد ختم نبوت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا جہاں مدفن ہے اس سرزمین پر میں حاضر ہوں۔ یقیناً یہ میری بہت بڑی خوش بختی ہے کہ جن کا ذکر کر کے ہم اپنے جذبوں کو جواں کیا کرتے تھے، اپنی فکر کو روشن کیا کرتے تھے، تخیلات کو پاکیزہ کیا کرتے تھے، علم شعور کو آگہی کا احساس عطا کیا کرتے تھے، اور جنہیں سن کر ہم نے خود میں غیرت اور جذبہ ایمانی محسوس کیا ہے، ان کا نام مولانا عبدالستار خان نیازی ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی خوش بختی ہے، سعادت ہے۔ اللہ پاک اس مرد مجاہد کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی مرقت پر اپنی رحمت کا، برکت کا، کرم کا، فضل کا نزول فرمائے، اور اس امت محمدیہ کو ان کی کوششوں سے جاں بلب ہونے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ابتدائی گفتگو میں جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف اور اعزاز حاصل کیا، یہ سورہ الحدید کی 16 نمبر آیت ہے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل رقت کے ساتھ ان کے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، کریم آقا اپنے مبارک حجرہ میں تھے، باہر صحن مسجد میں چند صحابہ کے قہقہا لگا کر ہنسنے کی آواز آئی۔ وہ بلند آواز سے ہنسے، کریم آقا کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، حضور کے چہرے پر ناگواری کے آثار گزرے اور حضور کا مبارک چہرہ زرد پڑ گیا۔ کریم آقا متغیر چہرے کے ساتھ اپنے لباس کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے ان صحابہ کے پاس گئے اور فرمانے لگے، اے میرے صحابہ، کیا تمہیں رب نے امان عطا کر دی ہے یا تمہیں بخشش کا پروانہ عطا کر دیا ہے جو تم اب صحن مسجد میں بیٹھ کر کہا لگا کر ہنس رہے ہو؟ آج ہمارا جوان اللہ کے گھر میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، عبادت میں مصروف اور محو رہتا ہے، لیکن اس کا دل نماز میں نہیں لگتا، خدا کے گھر میں نہیں لگتا، ذکر اذکار میں نہیں لگتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اس کے احساسات کا دین متین سے تعلق قائم نہ ہونا ہے۔ اب وہ صحابہ بھی کیا کر رہے تھے؟ صحن مسجد میں ہنس رہے تھے، ان کا بلند آواز سے ہنسنا تھا۔ کریم آقا ان کے پاس جا کر فرمانے لگے، کیا تمہیں اللہ نے بخشش کا اور امان کا پروانہ عطا کر دیا ہے جو تم اب صحن مسجد میں کہا لگا کر ہنس رہے ہو؟ کریم آقا نے جیسے ہی ارشاد فرمایا، صحابہ ڈر گئے۔ حضور نے فرمایا، تم ہنس رہے تھے، اللہ کا پیغامبر جبرائیل میرے پاس آیا اور اس نے مجھے اللہ کا حکم سنایا، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اے نبی، اپنے صحابہ سے فرما دیجئے، کیا ابھی ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل رقت کے ساتھ ان کے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں؟ جیسے ہی کریم آقا نے یہ ارشاد فرمایا، صحابہ ڈر گئے، عرض کی حضور ہم سے غلطی ہو گئی، فرمائیں اس کا کفارہ کیا ہے؟ کریم آقا نے فرمایا، کفارہ یہ ہے، جتنی دیر ہنستے رہے ہو اب اتنی ہی دیر تمہیں رونا ہے، اب اتنی ہی دیر تمہیں رونا ہے۔ حضرت اعمش روایت کرتے ہیں، نزول قرآن کے 17 سال بعد یہ آیت قرآن کا حصہ بنائی گئی۔ قرآن کتنے عرصے میں اترا ہے بتائیں؟ 23 سال کے عرصہ میں۔ قرآن کتنے عرصے میں اترا ہے؟ 23 سال کے عرصہ میں۔ 23 سالہ نزول قرآن کا جو عرصہ ہے، حضرت اعمش روایت کرتے ہیں، اقرا سے لے کر 17 سال تک یہ آیت قرآن کا حصہ نہیں تھی، لیکن صحابہ کے ایک عمل کی وجہ سے
मुस्तफा करीम के चेहरे पर नागवारी गुजरी, रब ने जिब्राइल को हुक्म दिया, ए जिब्राइल दौड़ता जा, अब तक जो कुरान का हिस्सा नहीं था उसे कुरान का हिस्सा बना और मेरे नबी के सहाबा को बता कि तुम्हारे जिस अमल से मेरे मुस्तफा के चेहरे पर नागवारी गुजरी है, रब को तुम्हारा वो अमल पसंद नहीं आया। और उसी वक्त इस आयत को कुरान का हिस्सा बनाया गया। देखें, सहाबा वो हस्तियां नहीं हैं जिन्हें हम खुद पर कयास कर सकते हैं। वो अस्हाब कन नुजूम के इरशाद के मुताबिक आसमान पर चमकते सितारे हैं, लेकिन हैं बशर, और बतकाज़े बशरी अगर उनसे कोई खता सरजर्द हुई है तो रब को उनकी वो खता पसंद नहीं आई। तो सामईन मुकर्रम, ये इस आया करीमा का शान नुज़ूल है। इस आयत को जब भी अहले ईमान तिलावत करते हैं, सिर्फ इस आयत की तिलावत से खुदा उनके जाहिर और बातिन की दुनिया को बदल देता है। हजरत नाफे रिवायत करते हैं, सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर जब भी कुरान मजीद की इस आयत की तिलावत करते, इस कदर रोते, रो रो कर बेहोश हो जाया करते। सैयदी शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली की किताब है तज़किरे और सोबतें। उस किताब में जहां सैयदना अबू बकर as-सिद्दीक से लेकर सल्फ सालिहीन अकाबिरीन उम्मत औलिया कामिलीन के तक़वा और तहारत के, खुशू और खुदू के, उनके ज़ौद और वरा के वाक़यात को बयान किया, वहीं सैयदी शेखुल इस्लाम ने मालिक बिन दिनार और फुज़ैल बिन अय्यास की तौबा को इसी आयत के ज़िमन में बयान किया। फुज़ैल बिन अय्यास अपने वक्त का बहुत बड़ा डाकू था, बदमुआश था, सियासी उचक्का था, लोगों का माल और जान लूट लिया करता था। बसरा उनका इलाका था, उनके बारे में मारूफ था, जो इस इलाके से गुजरता है फुज़ैल उनके माल और जान को लूट लिया करता है। रात का वक्त है, एक काफिला उस इलाके में पड़ाव करता है। फुज़ैल अपने लाओ लश्कर के साथ उस काफिले को लूटने के लिए उस काफिले में शामिल हो जाता है। अभी वो अपने साथियों के साथ प्लानिंग कर रहा है, उनको बता रहा है तुमने यहां से हमला करना है, तुमने यहां से हमला करना है, यहां से माल लूट कर हमने भाग जाना है। अभी वो अपने साथियों से मुशावरत कर रहा है। इसी इसना में काफिले में मौजूद एक खैमे में कुरान पढ़ने वाला कारी कुरान की इस आयत की तिलावत करता है। वो पढ़ता है, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अभी ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल रिक्कत के साथ उनके रब की बारगाह में झुक जाएं। वो फुज़ैल बिन अय्यास जो अपने वक्त का सबसे बड़ा डाकू था, बदमुआश था, सियासी गुम्मास्ता था, लोगों का माल और जान लूट लिया करता था, जब वो कुरान की इस आयत को सुनता है और कुरान की तजल्लियात अनवारे इलाहियात उसके सीने पर जागुज़ी होती हैं, मस्तो अलस्त होकर पुकारता है, लोगों सुनो, वो जो दुनिया का माल लूटा करता था आज कुरान ने उसे लूट लिया है, आज कुरान ने उसे लूट लिया है। तो सामईन मुकर्रम, ये आया करीमा जब अहले ईमान पर तिलावत की जाती है, सिर्फ इसकी तिलावत से उनके जाहिर और बातिन की दुनिया बदल जाती है। इस आया करीमा में दो लफ्जी मौजू है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम, ये कि तुम्हारे दिल नरम हो जाएं, ये कि तुम्हारे दिल झुक जाएं, ये कि तुम्हारे दिल खुशू और खुदू के हामिल हो जाएं। अच्छा, इसी आयत में आखिर कलमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, फ़क़सत क़ुलूबुहुम, उनकी तरह नहीं होना जिनके दिल सख्त हो गए, उनकी तरह नहीं होना जिनके दिल सख्त हो गए। देखें, एक आयत है, एक आयत में लफ्ज कुलूब कल्ब वाहिद का सिगा है, कुलूब उसकी जमा है। जमा के सिगा के साथ एक लफ्ज कुलूब कितनी मरतबा आया है? 2 मरतबा। बोले
2 मरतबा। अब आपने सर पे टोपी पहनी है, मैं आपसे पूछूं भैया आपने साफा रखा है, आपने टोपी रखी है, इसकी वजह क्या है? आप कहेंगे जी वजह यह है कि हम अल्लाह के घर का अदब करते हैं, ताजीम तकरीम टोपी सर पे रखने का मतमाए नजर और मकसूद नजर है, इसके अलावा कोई वजह नहीं है। अब सादा सी बात है, अगर आप अपने सर पे साफा बांधे या टोपी रखें, उसका कोई ना कोई मकसद है, तो रब ने कयामत तक की इंसानियत के लिए रुश्द और हिदायत का जरिया कमाल बनाकर जिस किताब लारैब को अपने लारैब रसूल के सीने पर उतारा है, और उस लारैब कलाम में एक आयत में 2 मरतबा लफ्ज़ कुलूब उतारा है, तो क्या बेवजह उतारा है? इस किताब की तो जबर और जेर भी बेवजह नहीं है। इकबाल ने कहा आ किताब जिंदा कुरान हकीम, हिकमत उला यदालस्तो कदीम। ये वो लाजवाल किताब है जिसका फलसफा कभी फिरसूदा नहीं हुआ, जिसकी फिक्र कभी पुरानी नहीं हुई। ये हर दौर के तकाजों से हम आहंग कामिलो अकमल किताब है। इस किताब को थामने वाला किसी भी इलाके से ताल्लुक रखता हो, किसी भी जमाने से ताल्लुक रखता हो, किसी भी सकाफत का पैरो हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, जब इस किताब के साथ तमस्सुक बिल लिसान, तमस्सुक बिल कल्ब, तमस्सुक बिल यद करता है, हाथ जुबान और दिल से इसकी तस्दीक करता है, वो इस किताब की तस्दीक करता है, खुदा इसकी बरकत से उसकी दुनिया और आखिरत को सवार देता है। एक आयत में लफ्ज़ कुलूब कितनी मरतबा आया? 2 मरतबा आया। अब उसकी वजह भी है, वो वजह क्या है उसे जानने की कोशिश करते हैं। देखें अल्लाह जल्ला मजदहू ने इस आयत में हुक्म फरमाया अन तख्शा कुलूबुहुम, ये कि तेरा दिल नरम हो जाए। अब सवाल पैदा होता है कि दिल नरम कब होते हैं? उलमा सादा सा जवाब देते हैं, दिल तब नरम होते हैं जब दिल जिंदा होते हैं। और आखिर में फरमाया फ़क़सत कुलूबुहुम, उनकी तरह नहीं होना जिनके दिल सख्त हो गए। उलमा फरमाते हैं सादा सा जवाब है, दिल सख्त कब होते हैं? जब दिल मुर्दा हो जाते हैं। दिल नरम है इसका मतलब है कि दिल जिंदा है, दिल सख्त है इसका मतलब है कि इंसान का दिल मुर्दा है। सामईन मुकर्रम देखें, हमारी उम्र गुजर गई, सर के बाल झड़ गए, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, हमने अपनी सारी उम्र में सिर्फ दिल को इस सीने में मौजूद खून के लिए धड़कने का एक उज़्व समझा है। एक दिल है, गोश्त का लोथड़ा है जिसमें 4 शरियाने हैं, 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं, 2 जिस्म से खून खींचती हैं, 2 जिस्म को खून पहुंचाती हैं। हमने फकत दिल को यही समझा है, जबकि कुरान में और नबी के रहमत के मुबारक फरमान में दिल बड़े वसी माना में इस्तेमाल हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमाया अफला यतदब्बरून अल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या तुम कुरान में गौर व खौज नहीं करते या तुम्हारे दिलों पर ताले हैं? इसी तरह फरमाया लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, इनके दिल हैं मगर ये सोचते। अब आप मुझे बताएं, सोचने के लिए अक्ल इस्तेमाल करते हैं या दिल इस्तेमाल करते हैं? आपने खाना खाना हो दिमाग बताता है या दिल बताता है? पानी पीना हो दिमाग बताता है या दिल बताता है? आपने सोना हो दिल बताता है या दिमाग बताता है? पावर ऑफ डिसीजन, फैसले की कुव्वत अल्लाह ने दिमाग को दी है या दिल को दी है? दिमाग को। लेकिन अल्लाह जिस इंसानी जिस्म में दिमाग को सोचने की समझने की सलाहियत अता कर रहा है, वही इंसान से फरमा रहा है लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, इनके दिल हैं मगर ये सोचते नहीं। इसका मतलब है कि रब्ब ज़ुल जलाल के फलसफा के मुताबिक दिल अक्ल का, शऊर का, फहम का, फरासत का, इल्म का, आगही का, इदराक का, तदब्बुर का और तफक्कुर का गहवारा बन रहा है। अब हमने कभी दिल से सोचा हो तो हमें दिल के सोचने का इल्म हो, कभी दिल से किसी बात को जाना हो तो दिल के जानने का इल्म हो। कभी हमने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, हालांकि हम मकतब जाते हैं। छोटी उम्र में आप अपने बच्चे को मदरसा बेचते हैं, मकतब बेचते हैं, कारी के पास पढ़ने के लिए बेचते हैं, तो कारी आपके बच्चे को
ایمان کے دو بنیادی اصول سکھاتا ہے. وہ آپ کے بچے کو پڑھاتا ہے, بیٹا پڑھ, اقرار باللسان. اقرار, آپ سب نے پڑھا ہے, اس کا معنی کیا ہے؟ اپنی زبان سے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اپنی زبان سے کلمہ شہادت کا اعلان کرنا. بتائیں, زبان سے اعلان کر دینا کافی ہوتا ہے؟ بولتے نہیں ہیں. ساتھ پڑھایا جاتا ہے وتصدیقم بالقلب. بندے ساری عمر تو اپنی زبان سے میری الوہیت کا, توحید کا, وحدانیت کا, یکتائیت کا, سمادیت کا, وحدہ لا شریک ہونے کا, لم یلد ولم یولد ہونے کا, اور میرے مصطفیٰ کے آخری رسول ہونے کا ساری عمر زبان سے اعلان بھی کرتا رہے, اور اس حال میں مر جائے اگر تیرا دل تیرے قول کی تصدیق نہیں کرے گا, ادھر تو مرے گا, اٹھا کے تجھے جہنم میں پھینک دوں گا. ہاں, رسول کریم فرماتے ہیں, حضرت معاذ بن جبل اس حدیث کے راوی ہیں, بندہ ایک مرتبہ اپنی زبان سے اور دل سے کلمہ شہادت کی تصدیق کر دے, رسول کریم فرماتے ہیں خدا اس پر جہنم کو حرام کر دیتا. اقبال نے کہا نا, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو بتائیں دل کی اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ دل کی ہی اہمیت ہے, اور کسی شے کی کوئی اہمیت. دیکھیں یہ جو حکم ہوا نا ان تخشع قلوبہم, اس کا معنی بنتا ہے, اس کا ترجمہ ہے یہ کہ تیرا دل جھک جائے, یہ کہ تیرا دل نرم ہو جائے, یہ کہ تیرا دل خشوع اور خضوع کا حامل ہو جائے. دیکھیں انسانی جسم جھکتا ہے, آپ نماز پڑھتے ہیں, قیام کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, سجود کرتے ہیں, آپ کا جسم جھکتا ہے. جسم کا جھکنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کا جسم زندہ ہے. آپ کا جسم حرکت کرتا ہے, جھکتا ہے, تو جھکنا, حرکت کرنا اس بات پر دلالت ہے کہ آپ کا جسم, اور یہی عمل اللہ نے دل کی طرف منسوب کیا, یہ کہ تیرا دل جھک جائے, چونکہ جب دل جھکے گا تو وہ دل کی زندگی کی طرف اشارہ کر رہا ہوگا. دیکھیں دل دھڑک رہا ہونا, آنکھیں دیکھتی ہیں, کان سنتے ہیں اور زبان بولتی ہے. اب یہ دل دھڑکنا بند کر دے, آنکھیں ہوتی ہیں مگر دیکھتی, کان ہوتے ہیں مگر سنتے, زبان ہوتی ہے مگر بولتی نہیں. لیکن رسول کریم فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, بخاری اور مسلم میں متفق علیہ ہے, کریم آقا فرماتے ہیں میرا رب فرماتا ہے من عاد لی ولیا آذنتہ بالحرب, جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں رب اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. میرا ولی میرے قریب ہوتا ہے نوافل اور فرائض کے ذریعے, جب وہ فرض اور نوافل عبادات کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے پھر میں اسے جمع بین القربین کا مقام ولایت عطا کرتا ہوں. یہ مقام ولایت کیا ہے؟ رب ولی کے دل کو زندہ کر دیتا ہے. جب دل زندہ ہوتا ہے پھر ولی کو یہ شان اور عظمت ملتی ہے. آنکھ بندے کی ہوتی ہے, پھر اس آنکھ سے دیکھنا خدا کا ہوتا ہے. کان بندے کے ہوتے ہیں, سننا خدا کا ہوتا ہے. زبان بندے کی ہوتی ہے, بولنا خدا کا ہوتا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندے کا, دیکھیں جامع ترمذی کی روایت ہے, رسول کریم نے فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر, لوگوں عمر رہتا تم میں ہے, چلتا تم میں ہے, پھرتا تم میں ہے, اٹھتا بیٹھتا معمولات زندگی تم میں سر انجام دیتا ہے, لیکن اس کی عظمت و شان یہ ہے جب عمر بولتا ہے عمر نہیں بولتا. الحق ینطق علی لسان عمر, عمر کی زبان پر عمر کا خدا بولتا ہے. عمر کی زبان پر عمر کا خدا بولتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جب خدا
बंदे के दिल को जिंदा कर देता है। फिर आजाद बंदे के रहते हैं, हाथ बंदे का होता है, पकड़ना खुदा का होता है। आंख बंदे की होती है, देखना खुदा का होता है। और जबान बंदे की होती है, बोलना खुदा का होता है। देखें, ये फलसफा मैंने कल्बी हयात व ममात का पेश किया, दिल की जिंदगी और दिल की मुर्दगी का। आए कुरान से पूछते हैं कि इस फलसफा की कोई हकीकत भी है या ये महज ज़बानी कलामी दावा है। कुरान मजीद में सूरह अल अनआम 122 नंबर आयत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, आवा मन कान मैतन फअहयैनाहु, भला वो लोग जो मुर्दा थे बस आपके रब ने उन्हें जिंदगी अता की। फअहयैनाहु, बस आपके रब ने उन्हें जिंदगी। फिर क्या हुआ? वजअलना लहू नूर, फिर आपके रब ने उन्हें एक नूर अता किया। यमशी बिही फिन्नास, फिर वो उस नूर के साथ लोगों में चलते हैं। देखें, इस आया करीमा का जो पहला हिस्सा है, आवा मन कान मैतन फअहयैनाहु, भला वो लोग जो मुर्दा थे बस आपके रब ने उन्हें जिंदगी अता की। जमहूर मुफस्सिरीन फरमाते हैं इससे मुराद जिस्म का मुर्दा होना नहीं है, इंसान के दिल का मुर्दा होना है। इंसान के यहां इस आयत के ज़िमन में दो मफहूम बनते हैं। एक मफहूम है, आपको मालूम है कुछ लोग नबी के रहमत के पीछे नमाज पढ़ा करते थे, कुछ लोग नबी के सीने पर उतरने वाला कुरान पढ़ा करते थे। वो नबी की सोबत में रहते थे, संगत में रहते थे, माइयत में रहते थे, इरादत में रहते थे, हुजूर के साथ सफर व हदर में उठते बैठते थे। लेकिन यही लोग जब बंद कमरों में जाते थे, काफिरों से मिलते थे, उनसे कहते थे हम तो मोहम्मद से इस्तेहजा करते हैं, मजाक करते हैं, हकीकत में तो हम तुम्हारे साथ हैं। रब फरमाता है, ऐ मेरे मुस्तफा, ये जो तेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं, ये जो तेरे सीने पर उतरने वाला कुरान पढ़ते हैं, ये जो तेरी सोहबत में, संगत में, माइयत में, इरादत में रहते हैं, सफर व हदर में तेरे साथ उठते बैठते हैं, फिर यही बंद कमरों में जाकर काफिरों से कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं, फिर तेरी जात पर तनकीद करते हैं, तनकीस करते हैं। मुस्तफा, ये चलते भी हैं, फिरते भी हैं, उठते भी हैं, बैठते भी हैं, तेरे पीछे नमाज भी पढ़ते हैं, तेरे सीने पर उतरने वाला कुरान भी पढ़ते हैं, लेकिन इनकी हकीकत ये है मुस्तफा, तेरे रब की बारगाह में आवा मन काना मैतन, ये मुर्दा है। ये क्या है? क्यों? इनके दिल मुर्दा है। इनके, आप देखें, अगर दिल मुर्दा हो, नमाज पढ़ने वाला इमाम मुस्तफा पाए और सहाबा की सोबत में मुस्तफा के पीछे नमाज पढ़े तो रब को उसकी नमाज भी कबूल। फिर हमारी नमाजें किधर गई? हमारा पढ़ा गया कुरान किधर गया? हमारा मस्जिद में बैठना किधर गया? नबी की रहमत को रब्बे जुल जलाल ने फरमा दिया, मुस्तफा तेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं, तेरे सीने पर उतरने वाला कुरान पढ़ते हैं, लेकिन बंद कमरे में तेरी जात पर तनकीस करते हैं। ये जिंदा हैं लेकिन मैतन, तेरे रब की बारगाह में मुर्दा हैं। क्यों? इनके दिल मुर्दा है। मुस्तफा, मेरे तो बनते हैं, मेरी नमाज तो पढ़ते हैं, मेरा कुरान तो पढ़ते हैं, मेरे तो बनते हैं, तेरे नहीं बनते हैं। मेरे तो बनते हैं, तेरे नहीं बनते। लेकिन इन बदबख्तों को इतना नहीं पता, मेरे वही बनते हैं जो तेरे बनते हैं, मेरे वही बनते हैं जो तेरे बनते हैं। तो रब भी फरमाता है, मुस्तफा तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खाब फिरते हैं। आज हमें सजदों की लज्जत नहीं मिलती, सीने को ईमान की हलावत नहीं मिलती, उम्रें गुजर गई, खुदा के घर में दिल नहीं लगता,
दिल आबाद नहीं होता, खुदा के घर से दिल मसहूर नहीं होता, उसके दिल से दिल मुतमाइन नहीं होता, कुरान के नूर से हमारा सीना मुनव्वर नहीं होता, फिक्र इलाही से दिल खुशादा नहीं होता। वजह यह है मई तन, हमारे दिल मुर्दा, हमारे, हाँ, रब फरमाता है मुस्तफा इनमें कुछ अबू बकर उमर जैसे भी हैं, इनमें कुछ उस्मान अली जैसे भी हैं, इनमें कुछ तलहा जुबैर जैसे भी हैं, इनमें कुछ बिलाल अम्मार जैसे भी हैं, इनमें कुछ ऐसे भी हैं इन्हें भूख लगती है तेरा चेहरा देख लेते हैं, प्यास लगती है तेरा चेहरा देख लेते हैं, इन्हें मुश्किल पेश आती है तेरे दर पर हाजिर हो जाते हैं, कोई तकलीफ दर आए तेरे घर हाजिर हो जाते हैं। मुस्तफा इन्हें कोई मुश्किल पेश आए ये तुझ से मांगने चले आते हैं, इनमें ऐसे भी हैं जो तेरी वल्लैल जुल्फों के असीर हैं, इनमें ऐसे भी हैं जो तेरे वद्दुहा मुखड़े के असीर हैं, इनमें ऐसे भी हैं जो तेरी मुजम्मिल कमली के तलबगार रहते हैं। मुस्तफा इनमें ऐसे भी हैं तेरा इशारा पाते हैं अपनी गर्दनें कटा देते हैं। हाँ, जब काफिर इन्हें देखते हैं फिर कहते हैं ये तो लागर हैं, ये तो ज़ईफ हैं, ये तो कमजोर हैं, ये तो मैयत हैं। मुस्तफा इन बदबख्तों को बता दे जिन्हें तुम मुर्दा कहते हो, फ़अहयैनाहु, तेरे रब ने इनके दिलों को जिंदा कर दिया, तेरे रब ने इनके दिलों को जिंदा कर दिया है। तो सामईन मुकर्रम, रब की बारगाह में दिलों की ये वक़ात है, ये अहमियत है, ये वुसअत है कि अगर दिल जिंदा है बंदा नमाज कहीं भी पढ़े वो काबिल कबूल है। देखें, कुरान के साथ एक ज़ौक़ पैदा करें, सवाबी ना बने, अपनी तबीयतों को इनकलाबी बनाए, फिक्र आशना बनाए। आप देखें ना, हमारे बच्चे घर चले जाएं, आप में से जितने बुजुर्ग बैठे हैं जिनको अल्लाह ने साहिब औलाद बनाया है, जुमे का दिन होगा, बुजुर्ग इधर मस्जिद में बैठे होंगे, उनके बेटे अभी घर में होंगे, फिर बेटे आए होंगे, जमात का वक्त होगा। आप मुझे बताएं, अगर आप मस्जिद में आए हैं और मस्जिद में आपका दिल नहीं लगता तो आने का कोई मतलब है? अल्लाह के घर के साथ दिल लगाएं और कुरान का ज़ौक़ पैदा करें, शौक पैदा करें, इस तर्ज पर कुरान सुनने का ज़ौक़ पैदा करें। देखें, वो किसी ने कहा ना, मैं ये नहीं कहता कि तुम ऐसा करो वैसा करो, उनकी सीरत आईना है, आईना देखा करो। आईना जब आप सामने रखते हैं शीशा, तो शीशे में आपको अपना आप नजर आता है। तो शायर कहता है मैं ये नहीं कहता कि तुम ऐसा करो वैसा करो, उनकी सीरत आईना है, आईना देखा करो। और बात तो जब है कि ऐसा राबिता पैदा करो, वो तुम्हें देखा करें तुम उन्हें देखा करो, वो तुम्हें देखा करें तुम उन्हें देखा करो। अब रब जिनके दिलों को जिंदा कर देता है, फ़अहयैनाहु, उस दिल की जिंदगी के बाद वजअलना लहू नूर, वो उनके दिलों को नूर अता करता है, वो उनके दिलों को यमशी बिही फिन्नास, फिर वो उस नूर के साथ लोगों में चलते हैं और जहां बेनूरा नजर आता है उसे साहिब नूर बना देते हैं। फिर उस जिंदगी से उसके कल्ब को नूर अता करता है, फिर वो उस नूर के साथ जहां जाता है जो बेनूरा नजर आता है उसे ईमान का नूर अता कर देता है। तो सामईन मुकर्रम, रब की बारगाह में अहमियत किसकी है? दिल की जिंदगी की। इधर लोग तबलीग करते हैं, जिहाद पर जाते हैं, फलसफा कलमा एलाए हक बयान करते हैं, हक की बात करते हैं, दीन की बात करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अहकामात शरीयत की पाबंदी करते हैं, उनका जिस्म झुकता है। रब फरमाता है बंदे, जब तक तेरा जिस्म झुकेगा, अगर उस जिस्म के साथ अन तख्शा कुलूबुहुम, तेरा दिल नहीं झुकेगा, सारी उम्र की इबादत मेरी बारगाह में रायगा जाएगी। हाँ, अमल थोड़ा हो, इबादत थोड़ी हो, मामलात थोड़े हो, पाबंदी शरीयत कम हो, आमाल में सुकम हो, अन तख्शा कुलूबुहुम, लेकिन बंदे का दिल झुक जाए। जब दिल झुकेगा, आमाल थोड़े होंगे,
رب ان اعمال کو قبول بھی کرے گا اور اس بندے کو اپنی بارگاہ میں مقبول بھی کرے گا۔ وہ کب ممکن ہے؟ جب بندے کا۔ تو سامعین مکرم، یہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اپنے آپ کو تیار کیجئے قربانی کے لیے، اور قربانی جانور کی نہ دیجئے گا، اس کے خون بہانے کی نہ دیجئے گا، گوشت کے تقسیم کرنے کی نہ دیجئے گا، اپنی لالچ کی دیجئے گا، طمع کی دیجئے گا، حرص کی دیجئے گا، جذبات کی دیجئے گا، خواہشات کی دیجئے گا۔ اپنے دل کے لیے نفسانی خواہشات کو پاک کرنے کے جذبے کی دیجئے گا۔ اور عفا فرماتے تھے من ماتت نفسہ، لوگوں جس کا نفس مر جاتا ہے، خواہشات مر جاتی ہیں، طمع مر جاتی ہے، لالچ مر جاتی ہے، حرص مر جاتی ہے۔ آپ میاں والی والے بیٹھے ہیں، آپ کی ہسٹری بڑی بانگے دول ہے، بڑی کھلی ہسٹری ہے، ایسا ہی ہے؟ آپ کے ہاں لوگ جذباتی بہت ہوتے ہیں، پر ان کے جذبات خانہ داری کے معاملات میں ہیں، آپسی لین دین کے معاملات میں ہیں، غیرت کے معاملات میں ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ غیرت جہنم میں لے کر جائے گی جو رشتہ داری کے معاملات میں آتی ہے، خانہ داری کے معاملات میں آتی ہے، مونچھ کو تاؤ دینے کے معاملات میں آتی ہے، خدا کے دین کے معاملے میں نہیں آتی۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ عرفاء فرماتے تھے من ماتت نفسہ، جس کا نفس مر جاتا ہے۔ یہ جو غیرت ہے نا، جذبات ہیں، یہ نفس میں پنپتے ہیں۔ جس کا نفس مر جاتا ہے بعدت عنہ دنیاہ، اس کا رب اس سے دنیا کو دور کر دیتا ہے۔ ہاں من ماتت قلبہ، جس کا دل مر جاتا ہے، جس کا دل مر جاتا ہے بعدت عنہ مولاہ، پھر اس کا رب اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اب اگر دل زندہ ہے تو رب اس دل میں آباد ہے، اور رب جس دل میں آباد ہے وہاں کوئی غیر آباد نہیں سکتا۔ تو سامعین مکرم، اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے وہ ہمیں اپنے دلوں کی زندگی پر کام کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، اپنے قلب کو زندہ کرنے کی ہمت عطا فرمائے، اور ہمیں ثواب سے نکال کر انقلاب آشنا بنائے، ہماری طبیعتوں کو، مزاج کو، خیالات کو، افکار کو قرآن کا نور عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری جوانیوں کو ایمان اور سجدوں کی لذت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرمائے۔